नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौवागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् मङ्गलं रूपमोहि मङ्गलं कुञ्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निरुद्ध निराकार। કળશ અમૃત ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય રચિત કળશ અમૃતનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં સર્વ વિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકારમાં 24મો કળશ એટલે કે સળંગ કળશ 216 સુધી સ્વાધ્યાય કર્યો છે. હવે આજે 25મો કળશ આપણે લઈએ છીએ, સળંગ કળશ 217. સમયસારમાં કુંદકુંદાચાર્ય ભગવાનની ગાથા 365 પછીથી અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને 3 કળશ કયા. એમાંનો આ ત્રીજો કળશ છે. 215 અને 216 કળશની અંદર જે વાત 365 ગાથા સુધીમાં જે આવી એના સંબંધીની વાત કરી અને હવે આગળની ગાથાઓની સૂચના રૂપે કાવ્ય કહે છે એમ કહી અને આ કળશ 217 મૂકે છે. એટલે હવે પછીની જે ગાથાઓ 366 થી જે આવવાની છે એની સૂચના રૂપે 217મો કળશ છે. 217મા કળશના શ્લોકાર્થમાં કહે છે કે ત્યાં સુધી રાગ દ્વેષનું દ્વંદ ઉદય પામે છે, એટલે કે ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે રાગ દ્વેષ ત્યાં સુધી રહે છે, રાગ દ્વેષ થયા જ કરે છે. ક્યાં સુધી? તો કે છે કે જ્યાં સુધી આ જ્ઞાન રૂપ ન થાય અને જ્ઞેયપણાને ન પામે ત્યાં સુધી રાગ દ્વેષ થતા રહે છે. માટે આ જ્ઞાન અજ્ઞાન ભાવને દૂર કરીને જ્ઞાન રૂપ થાઓ. માટે આ જ્ઞાન અજ્ઞાન ભાવને દૂર કરીને જ્ઞાન રૂપ થાઓ કે જેથી ભાવ અભાવને રાગ દ્વેષને અટકાવી દેતો પૂર્ણ સ્વભાવ પ્રગટ થાય. ભાવાર્થમાં પંડિત જયચંદજી છાબડા કહે છે કે જ્યાં સુધી જ્ઞાન રૂપ ન થાય, જ્ઞેય રૂપ ન થાય, એટલે કે જ્ઞાન અને જ્ઞેયની ભેળસેળ જ્યાં સુધી રહ્યા કરશે, જ્ઞાનમાં જ્ઞેય આવી જતા નથી છતાં પણ જ્ઞેયને એ પોતા રૂપ માનશે, જ્ઞાન રૂપ માનશે, અથવા તો પોતે જ્ઞાન રૂપ છે તો જ્ઞાન સ્વભાવે રહી અને જ્ઞેયને જાણવા વાળો થયો છે એને બદલે પોતે જ્ઞેય રૂપ થશે તો ત્યાં સુધી એ જ્ઞાન રૂપ નથી થતું અને જ્ઞેય રૂપ નથી થતું. એટલે એ વાત અહીંયા સમજાવી છે કે સ્પષ્ટ થઈ જાય જ્ઞાન રૂપે જ છે, જ્ઞેય રૂપે જ છે, બંને વચ્ચે બીજો કોઈ સંબંધ નથી. જ્ઞાતા જ્ઞેયનો સંબંધ જે છે એમાં એક રૂપ પણ હોતું નથી. એટલે કહે છે કે જ્યાં સુધી જ્ઞાન રૂપ ન થાય, જ્ઞેય રૂપ ન થાય ત્યાં સુધી રાગ દ્વેષ ઉપજે છે. માટે આ જ્ઞાન અજ્ઞાન ભાવને દૂર કરીને જ્ઞાન રૂપ થાઓ. એટલે પોતે જ્ઞાન સ્વભાવે જ પરિણમે, જ્ઞાનમાં ઝળકે તે છતાં પણ એ પોતે જ્ઞેય રૂપ થતો નથી. અને એમ જ થાવ, અજ્ઞાન ભાવને દૂર કરીને જ્ઞાન રૂપ થાવ કે જેથી જ્ઞાનમાં જે ભાવ અને અભાવ રૂપ બે અવસ્થાઓ થાય છે તે મટી જાય. પંડિતજી અહીંયા વધારે સ્પષ્ટતા લીધી કે જ્ઞાન રૂપ થાવ એટલે શું? તો કે છે જેથી જ્ઞાનમાં જે ભાવ અને અભાવ રૂપ બે અવસ્થાઓ થાય છે તે મટી જાય અને જ્ઞાન
પૂર્ણ સ્વભાવને પામી જાય એ પ્રાર્થના છે. બહુ સરસ રીતે વાત મૂકી છે. 3 લીટીની અંદર પંડિતજી બહુ મોટી વાત સમજાવી દીધી છે. આચાર્ય ભગવાને ગાથા પણ એવી જ લખી છે, કળશ એવો જ લખ્યો છે. કળશ અમૃતની અંદર પંડિત રાજમલજીએ ખંડાન્વય સહિત જે અર્થ લખ્યો છે તે આપણે લઈએ છીએ. કે વિદ્યમાન ઇષ્ટમાં અભિલાષ અને અનિષ્ટમાં ઉદ્વેગ એવા બે જાતિના અશુદ્ધ પરિણામ ત્યાં સુધી થાય છે જ્યાં સુધી જ્ઞાન અર્થાત જીવ દ્રવ્ય પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપના અનુભવ રૂપ પરિણમતું નથી. જ્યાં સુધી જ્ઞાન રૂપ પરિણમતું નથી, એટલે કે કોણ જ્ઞાન રૂપ પરિણમે? જીવ. એ જ્ઞાન જીવનો સ્વભાવ છે, આત્માનો સ્વભાવ છે. એટલે કે છે કે જ્યાં સુધી જ્ઞાન અર્થાત જીવ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપના અનુભવ રૂપ પરિણમતું નથી, ત્યાં સુધી ઇષ્ટમાં અભિલાષ અને અનિષ્ટમાં ઉદ્વેગ એવા બે જાતિના અશુદ્ધ પરિણામ થાય છે. આજે વર્તમાનમાં જે પરિણામ થાય છે એ પરિણામ ક્યાં સુધી થાય છે? તો કે જ્યાં સુધી પોતે જ્ઞાન ભાવે થતો નથી. ભાવાર્થ આમ છે કે જેટલા કાળ સુધી જીવ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે તેટલા કાળ સુધી રાગ દ્વેષ રૂપ અશુદ્ધ પરિણમન મટતું નથી. જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મ અથવા રાગાદિ અશુદ્ધ પરિણામ જ્ઞેય માત્ર બુદ્ધિને પ્રાપ્ત થતા નથી. જ્યાં સુધી એ જ્ઞાન ભાવે થતું નથી, અર્થાત જીવ દ્રવ્ય પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપના અનુભવ રૂપ પરિણમતું નથી, ત્યાં સુધી એને રાગ દ્વેષના પરિણામ થાય છે. અને બીજું અહીંયા કહે છે કે તથા જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મ અથવા રાગ આદિ અશુદ્ધ પરિણામ જ્ઞેય માત્ર બુદ્ધિને પ્રાપ્ત થતા નથી. ભાવાર્થ આમ છે કે જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને જાણવા માટે છે. એ બધા પરિણામ જે થઈ રહ્યા છે તે પરિણામ એના જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે, એ જાણવા માટે છે. કોઈ પોતાના કર્મનો ઉદય કાર્ય જે તે પ્રકારે કરવાને સમર્થ નથી. ખરેખર એ કાર્યનો કરતા નથી, એ એના જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે. તે કારણથી જ્ઞાન અર્થાત જીવ વસ્તુ શુદ્ધ પરિણતિ રૂપ થઈને શુદ્ધ સ્વરૂપના અનુભવ સમર્થ હો. કેવું છે શુદ્ધ જ્ઞાન? તો કે છે કે જેણે મિથ્યાત્વ ભાવને દૂર કર્યો છે, દૂર કરી છે મિથ્યાત્વ ભાવ જેને એવું છે. આવું જ્ઞાન થતા કાર્યની પ્રાપ્તિ કહે છે કે જે શુદ્ધ જ્ઞાન વડે પૂર્ણ સ્વભાવ અર્થાત એવું દ્રવ્યનું અનંત સ્વરૂપ છે એવું પ્રગટ થાય છે. આમ છે કે મુક્તિ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. કેવો છે પૂર્ણ સ્વભાવ અર્થાત સ્વરૂપ? ચતુર્ગતિ સંબંધી ઉત્પાદ વ્યયને સર્વથા દૂર કરતું થકું જીવનું સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે. જીવના સ્વરૂપમાં આ 4 ગતિ નથી. 4 ગતિના ભ્રમણ જે થાય છે એવા ઉત્પાદ વ્યય, રાગ દ્વેષ, આ બધું જીવમાં નથી. એવું સ્વરૂપ એનું પ્રગટ થાય છે અને મુક્તિ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો એ રીતે 217મો કળશ છે. પૂજ્ય ગુરુદેવે એની ઉપર ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે, તે આપણે લઈએ. કળશ પ્રવચન ભાગ 6 એના પાના નંબર 404 ઉપર પહેલેથી શરૂ કરી અને પૂજ્ય ગુરુદેવ 217મો કળશ એનો વિસ્તાર કરે છે, એ સમજાવે છે. અને 217 એમાં વિષય જરી રાગ દ્વેષ દ્વયમ ઉદયતે તાવત એતદ ન યાવત
ज्ञानम ज्ञानम भवति न पुनः योग बोध्यताम याति बोध्यम ज्ञानम ज्ञान भवतु तदिदम नकृत अज्ञान भावम भावय भावो भवति तिर्यनेन पूर्ण स्वभावम। क्या कहते हैं देखो, ये तत् राग्भि द्वयम तावत उदयति, ये तत् नाम विद्यमान इष्ट में अभिलाष, इष्ट पदार्थ देखकर अभिलाष राग, और अनिष्ट में द्वेष, ऐसे दो जाति का शुद्ध परिणाम। आत्मा में अज्ञान भाव जब लग है तब लग इष्ट में बसें 70 कलश। ओह आए तो एक लीटी बह लीटी तर चले, मैं एकदम चलतू नहीं पूरा, एक दो लीटी में बहुत बड़ा है। क्या कहते देखो, ये तत् विद्यमान इष्ट में अभिलाष, आत्मा में जब लग अज्ञानपना है तब लग इष्ट पदार्थ देखकर राग होता है और अनिष्ट का देखो द्वेष होता है। ये अज्ञानपन है, अपना स्वरूप में राग द्वेष है नहीं। पण अज्ञान जब लग है, स्वरूप का भान नहीं, तो इष्ट देखकर राग और अनिष्ट द्वेष, ऐसा राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, पर अपना ज्ञान में आनंद की उत्पत्ति नहीं होती। हाँ बात है, एक एक शब्द में फिर है बहुत बापू आपको दिख गया। यहाँ तो कहते हैं इष्ट में अभिलाष राग, अनिष्ट में द्वेष, ये दो जाति का मलिन परिणाम, अशुद्ध परिणाम, अशुद्ध भाव, ये दो ये ये विकल्प उठते हैं। वृत्ति आ करूं अमुक, ये वृत्ति सब राग है न विकार है। विकार है, विकार का दो प्रकार है, एक राग और एक द्वेष। तो कहते हैं कि राग ने द्वेष कब लग उत्पन्न होता है कि जब लग आत्मा अपना स्वरूप का भान नहीं, अन्य राग से भिन्न अपना भान नहीं, तब लग इष्ट पदार्थ को देखकर राग, अनिष्ट को देखकर द्वेष उत्पन्न करते हैं। ये आनंद में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करते हैं, विकार की उत्पत्ति करते हैं। राग में ईश्वरा नहीं, वस्तु में ईश्वरा नहीं, वस्तु में ईश्वरा नहीं, वस्तु मानते हैं अज्ञानी। वस्तु में ईश्वरा क्या, वस्तु अज्ञेय है, ये ईश्वर अनिष्ट है क्या, ये तो ज्ञेय है, जानने लायक है, जड़ आदि सब। पण अज्ञानी ठीक है ऐसा इष्ट पदार्थ आरोप करके राग उत्पन्न करते हैं। पदार्थ ईश्वर निष्ठ है नहीं तो जड़ है, जड़ माटी है। ज्ञान में तो ज्ञेय है, जानने लायक है, एवं दो भाग कैसे लाया, क्या ठीक है ना ठीक है, ये अज्ञानपन है उत्पन्न के रेला राग द्वेष का भाव है। दूरी नदी आजो कौन था। क्या क्या देखो, मनुष्य ज्ञान का पूर्व आगे में कभी आत्मज्ञान होता है क्या जीव को? क्या कहते हैं, मनुष्य जन्म था यार, पहला आत्मज्ञान पहले होता है, त्रियंत्र में होता है, पशु में होता है, शक्ति है अंदर, आत्मा पड़ा है ना, पशु में होता है। इतना दाखला कह दे, मनुष्य क्षेत्र है, मनुष्य क्षेत्र जितना मनुष्य है ना, एक क्षेत्र को मनुष्य क्षेत्र कहते हैं। ये 45 लाख योजन में है, 45 लाख योजन में मनुष्य क्षेत्र है। पीछे क्षेत्र है बहुत असंख्य योजन, जहाँ एक तीन है, गाय भैंसी बाघ माछला, पानी में बड़ा बड़ा माछला होते हैं 1000 योजन का, बहुत लंबी बात तुमको जट है। तो उसमें मत्स्य है, ये भी सब आत्मज्ञान पाते हैं, आत्मा है ना अंदर। तो अंदर में ज्ञानी पहले कहा था यहाँ हो तो सुना था तो समझे नहीं, तो त्या जाकर अंदर ओहो आची क्या, ज्ञानी कहते हैं कि तुम तो भिन्न है, राग से पुण्य से शरीर से भिन्न है, ऐसा भान होकर त्रियंश में भी आत्मज्ञान होता है। अरे नरक में भी होता है, नीचे नारक है एक। झीणी बात कितनी बुद्धि करे। मांस खाते हैं, मांस माछला ईंडा खाते हैं तो नरक में जाते हैं, नीचे नरक है। नरक में इतना दुख है कि यहाँ जितनी प्रतिकूलता पर प्राणी को दिया, इससे अनुगुणी प्रतिकूलता क्या है, ત્યાં उसको जन्म आते हैं।
जितना प्रमाण में आत्मा पर को प्रतिकूलता में द्वेष आदि दिया कि राग किया, इतना प्रमाण में प्रतिकूल स्थान त्या नरक में है, ત્યાં ઉપજते हैं, ત્યાં अनंत वैरूप जे है, अनादिकाल है ना, अनादि का अनंत वैरूप जे है, ત્યાં भी कोई आत्मज्ञान पाते हैं। मोक्ष न जाए मोक्ष नहीं, आत्मज्ञान पाते, मोक्ष तक मनुष्यपना में आते हैं, मनुष्यपना बिना मोक्ष होता नहीं, अंदर पूर्ण आनंद की प्राप्ति होना ही मोक्ष, ये दशा मनुष्यपना में होता है, त्रियंत नरक में नहीं होता। स्वर्ग देव है, देव भी चंद्र सूर्य है ना, पत्थर देखते हैं उसको देव है, आप तो दिखते हैं बोला कैसे तुम्हारा विज्ञान वाला चंद्रमा ले गया फलानो ले गया, कैसे नहीं बोलो खबर चल, ये चंद्र सूर्य तो दिखते हैं तो पत्थर है प्रकाश, ये अनादि का, उसमें देव है, ज्योतिष का देव है, तो देव भी आत्मज्ञान पाते हैं। हम तो अनंत वेद सब में जन्मे हैं, पर आत्मा ना ज्ञान बिना चावर राशि का अवतार परिबन मिटा नहीं। आत्मा तो शुद्ध चीज होता है, तो उसको काहे नीचे में जाना पड़ेगा? भाव भूंडा करते, राग देश करते जाना पड़ता है तो शुद्ध पर भान नहीं ले, तो राग देश करते हैं ना, आ किया आ किया आ किया, आत्मा तो कुछ नहीं किया ना, आत्मा मानते है ना, मानते हैं ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, तो ऐसा प्रमाण में पाप बनते हैं, तो पाप से स्वर्ग गति में जाना पड़ता है। जैसे लोहा हो, लोहा भारी पानी में मुको ऊपर से तो अंदर चले जाता है, क्यों बोझा हुआ ना, ऐसे आत्मा में बोझा हुआ ना, लोहा लोहा का पानी में नीचे चले जाते ऊपर मुको, ऐसे आत्मा में पाप करते हैं, हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना, आत्मा पर्याय में करते हैं दिशा में अपना स्वभाव को भूलकर, तो ये पाप का बोझा से है नीचे उतर जाते हैं, पानी है तो में नीचे उतर जाते लोहा, ऐसे नीचे नीचे गति है, सूक्ष्म बात है, बड़ी सिद्ध करने जाए तो लॉजिक से सब सिद्ध कर सकते हैं। समझ में आया? पर एक एक बात सिद्ध करवा जाए तो बात बीजी पची पड़ी रहे। आया तो आत्मा ही दोष करते हैं, ये वस्तु का अपनी चीज की खबर नहीं तो दोष ये करते हैं, विषय भोग वासना राग द्वेष करते हैं, कौन करते हैं? आत्मा करते हैं पर्याय में, पर्याय अवस्था हालत में, हालत दिशा, त्रिकाल में नहीं, त्रिकाल तो दुर्शुद्ध है, पर हालत में वर्तमान दिशा में राग द्वेष करते हैं। ये तो कहा ना, इष्ट देख कर राग करते हैं, अनिष्ट देख कर द्वेष करते हैं। इष्ट अनिष्ट वस्तु नहीं, पर कल्पना करते हैं का ठीक है, स्त्री ठीक है, पैसा ठीक है, आबरू ठीक है, ऐसे मानकर अज्ञानी राग करते हैं, और रोग आते हैं, निर्धनता होती है तो ठीक नहीं, ऐसे द्वेष करते हैं, तो राग द्वेष करते हैं, इतना प्रमाण में उसको चार गति में घुलना पड़ता है। चार गति है, उसको लॉजिक से सिद्ध कर सकते हैं सब बात, पर एक से एक साथी बुझावे तो पार ना है। नीचे नरक योनि है, ऊपर स्वर्ग योनि है, मनुष्य योनि, त्रियंत योनि, तो बे दिखते हैं यहाँ। त्रियंत कहते हैं गाय भैंस सिंह वाघ, त्रियंत है ना, त्रियंत क्यों कहते हैं? त्रियंत त्रिखा 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 त्रिखा, मनुष्य ऐसा है ना, तो गाय भैंस सिंह वाघ क्या कहते तुम्हारे हिंदी? टेढ़ा 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 हो गया शरीर, क्यों? पूर्व टेढ़ा ही बहुत किया था। माया कपट कुटिलता बहुत किया तो टेढ़ा ही बहुत किया था, तो जिसका शरीर भी टेढ़ा हो गया है। अब मनुष्य ऐसा है, गाय भैंस ऐसा है, टेढ़ा है ना, गाय भैंस सिंह वाघ नौल कौल, ठीक है, ये सब पूर्व टेढ़ा ही किया था, उसका फल है। જેની વાત ઘણી બાપુ શું કરે, કોઈ भी अभ्यास नहीं हूँ, केम जो केम चार गति में यहाँ रखड़ते यहाँ भाव क्यों हुआ? मैं तो अरूपिया आनंद कन हूँ, आ क्या है? कलंक क्या शरीर का ना, तो उसका कारण क्या? तो अज्ञान पने जरा द्वेष किया, उसका फल में आचार गति मिली। समझ में आया?
जीवद्रव्य है यावत ज्ञान ज्ञान न भवति। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यावत ज्ञानो ज्ञान न भवति। जब लोग ज्ञान ज्ञान में रहने तो नहीं रहते हैं, तब लोग राग विष की उत्पत्ति उसको होती है न्यू तावत ज्ञानो ज्ञान न भवति। जब तक जीवद्रव्य अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप नहीं प्रणमता, उसका स्वरूप तो शुद्ध ही है, पर शुद्ध रूपे होता नहीं परिय अवस्था में, तब लग राग ने द्वेष की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? आप अध्यात्म की बात है भैया, भगवान सूक्ष्म है, कभी अनंत काल में अभ्यास किया नहीं, और ये अभ्यास बिना अंतर में जा सकते नहीं। अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव नहीं प्रणमता, क्या कहते हैं, जब लग राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, कब लग, जब लग आत्मा ज्ञान का स्वरूप अनुभव नहीं करते हैं, तब लग राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। समकिति को नहीं उत्पत्ति हम कहते भैया। हाँ, आत्मज्ञान हुआ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आनंद खंड प्रभु सच्चिदानंद सत सत शाश्वत चिदानंद सच्चिदानंद सत शाश्वत चिदानंद ज्ञान में आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा अंतर में अनुभव न करे, तब लग अज्ञान पड़े, परमा निमित्त में जाकर राग द्वेष उत्पन्न होता है। निमित्त पर लग जाकर राग द्वेष उत्पन्न होता है। જ્યાં સુધી आत्मा का अनुभव न करे, ત્યાં સુધી इसको राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। जब ज्ञान का भान हुआ, पीछे राग द्वेष होता है थोड़ा, पर उसका कर्ता नहीं होता, उसका ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। क्या किया ये क्यों नहीं? ज्ञानम ज्ञानम भवत न भवति। ज्ञान इतने आत्मा आत्मा स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, ऐसा अनुभव न करे, तब लग उसको राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। राग द्वेष की उत्पत्ति से चार गति में दुख सहन करना पड़ता है। ये राग द्वेष उत्पन्न हुआ, ये दुख है। हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना, ये पाप रूपी दुख है। दया दान भक्ति पूजा व्रत तप, ये पुण्य रूपी दुख है। ये दुख है। दो ही राग ने द्वेष विकल्प है, वृत्तियां उठती है। आंखों काम अजीब कुछ कर्म नहीं करेगा तो कैसे करे? तो ज्ञान में रहेगा, करे तो मरी जाएगा। कर्म तो कुछ चाहिए नहीं करना है, कर्म मांगे ना पाते। कर्म राग द्वेष करे तब लोग मर जाएगा। ये आत्मा आत्मा की शांति मारी नाखते हैं वो। यही बात है। નથી નથી કરે કર્મ સોહીરે કરતા, જો જાને સો જાનન હારા, જાને સો કરતા નહીં હોઈ, કરતા સુ જાણે નહીં કોઈ। જે કરતા સુ કર્મ જાણता नहीं, मैं करूं करी सकूं એવું मानना वाला आत्मा जानने वाला रहते नहीं, अने जानने वाला रहते हैं, एक राग को करता होता नहीं। कर्म राग का कर्म करना हो मिथ्या दृष्टि मानते हैं, हम कहता है तो। सेवा विवाह करना परनी ये बधी मिथ्या ब्रह्म है, राग है। कारण એને તો બ્રહ્મચારી છે તો પરિણ્યા નથી, ત્યાં બધા પૈસા આવે તો નાખી દે, બેમાં રાગ હે। દવા કોણ દઈ सकते है, વિકલ્પ પૂછते જેની વાત છે भाई। चैतन्य जो तो भगवान अंदर में राग की उत्पत्ति हो, ये स्वभाव है नहीं। खाना कैसे मिलेगा? खाने कौन
खाना तो सुना नहीं आपने? अपने आते हैं गुजरात में, तुम्हारी हिंदी में होगा, खाने वाले का नाम दाने दाने है, आते हैं? क्या नाम आते हैं हिंदी में? ना दाने पे लगा हुआ है ये क्यों कि जी रचकन आने वाला ही आएगा। ये आपने कहो थे, खाने वाले का नाम दाना में है, दाना दाना समझे, दाल भात कोई नाम तो है नहीं, पर जो रचकन से आने वाला है ये आएगा, नहीं आने वाला नहीं आएगा। उसका प्रयत्न से आएगा राग से, बातें तो बिल्कुल झूठ है। तो जो दान करता है उसको कुछ दान करता है तो राग की मनता है, भी बंधन का कारण है, उसका पुण्य नहीं होता पुण्य होता है। बंधन बंधन दुख है। तो जान जुड़ी बहुत है। दान में राग मंद होता है तो मंद करते हो तो आबरू माटी अपनी बात प्रसिद्धि हो तो पाप है, पर मंद हो तो पुण्य, ये भी दुख रूप है। विकल्प है ना, राग वृत्ति उठती है ना, मैं ऐसा दो में एक दुख है। પુણ્ય પુણ્ય ક્ષેત્ર તો ડાક્ટર સાહેબ ક્યાં છે, આટલી બધી કમાણી છે, ધૂળમાં કઈ નથી, એમાં ત્યાં કમાણું શું હતું? ત્યાં અબજોપતિ કેટલાય છે બજારા મરી ગયા ક્ષણમાં. કીધો ને ગોવા વાળા નહીં હે, 240 કરોડ શાંતિલાલ ખુશાલ હતા. ગોવા છે ને, ગોવા દીવ દમણ ને ગોવા નહીં, દીવ દમણ ને ગોવા નહીં કહેते ગોવા ગામ, ત્યાં એક ગ્રસ્ત है, अभी गुजर गई। हाँ गोवा, दीव दमन गोवा पोर्टुगीज ना गाम है ना, नक्शा में आते थे, नक्शा में आते थे। वाणिया था बनिया 2 અબજ કરોડ 40 કરોડ 2 અબજ 40 કરોડ રૂપિયા મળી ગયો 5 મિનિટમાં. એની સ્ત્રીના થયેલો શું કહેવાય તમારે હેમરેજ થયેલું તે ગોવાથી. ગોવામાં 40 લાખનું મકાન છે, 40 લાખનો બંગલા है, 10 લાખના 8 लाख बराबर है। गुजर गया मना 2 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष। उसकी स्त्री को हेमरेज हुआ तो मुंबई आई थी, तो 2-4 दिन के पीछे रात्रि को 2 बजे खड़ा हुआ, और मेरे दुखते हैं, बुलाओ डॉक्टर ने। डॉक्टर आया, पहला दे छूट गया, क्या तारा धूड़ हूँ काम करते डॉक्टर 2 અબજ 40 કરોડ डॉक्टर नहीं तो डॉक्टर नहीं देता है, हम कहते डॉक्टर बोले हम 2 घड़ी दूर देरी हो गई। पहले मैंने बोला बूढ़े कर रहे नहीं, डॉक्टर कौन करते हो? दो घड़ी पहले बुलाया तो मैं बराबर संभाल कर सकता हूँ, अरे तो नहीं कर सकता। डॉक्टर ना अभिमान है, डॉक्टर तो एक साथ में तो आत्मज्ञान होता नहीं जिसको, तो कुछ काम करते करते ठोकर खाते करते मरते हुए लहसुन खाते खाते कसूर का डका रहता है। एक साथ में आत्मज्ञान नहीं है, एक साथ आते हैं, नकाल छोड़ते हैं उसको, पाप ने पुण्य छोड़ते हैं, आत्मा में जाते तो एक साथ आनंद में ज्ञान आता है। ऐसी बात सूक्ष्म है, बहुत सारी बात है। મોટા માણસો એવો હોય પૈસા આપણે દાન આપીએ તો પછી આપણને કઈ લાભ થાય, ધૂળ નહીં થાય। पैसा जड़ है, धूड़ है, ये क्या तेरी चीज थी, मेरी है से मान कर दिया तो ये पाप है, और राग मंद किया हो तो पुण्य। 2 ही दुख है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, इसमें न आवे तब तो दुखी है, 4 गति में रंजने वाला है। सबको हम तो जानते ना तो 88 वर्ष हुआ डॉक्टर, 88 निवासी। हम तो गर्भना तो निवासी चलते हैं, तो 9 महीना है ना माता ना पेट में, तो आईना है ना आयुष, तो लोग जन्म पीछे गिनते हैं, पर शास्त्रकार तो माता ना उदर में आए पेट में, जब वो भाव में से तार से आयुष आई का है। निवासी वैशाख बीजे 2 जन्म का निवासी, वैशाख बीजी निवासी। हम तो जन्म गर्भ का तो निवासी चलते हैं, सवाल तो हो गए। अरे बहुत देखा है, बहुत सुना है, सबके व्यापार भी किया था 5 वर्ष तो दुकान में।
पाप 5 વર્ષ વેપાર ગયા હતા, 17 વર્ષની ઉંમર છે, 17 10 ને 7 ત્યાં से 5 વર્ષ 22 વર્ષ दुकान छोड़ दिया। पाली है ना, भरूच में पाली पास ही बड़ा जिम था ત્યાં, अभी तो ले लिया हमारे भागीदार मकान बना है बड़ा। कौन करते हैं आई तो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं निष्काम भाव रहते नहीं, हम पर आ गए है। अनासक्ति भाव करना हम कहते हैं, खबर है ना, हमको नहीं खबर है। निष्काम भाव से करना ये बातें झूठी है, ये वृत्ति उठी है, निष्काम है ही नहीं। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में रहे, पीछे वृत्ति उठती है तो उसका जानने वाला रहते हैं, पर हजी ज्ञाता दृष्टा की खबर ही न मिले कि मैं तो कोई राग का करने वाला नहीं, पर का करने वाला मैं नहीं। मैं तो स्व पर को अपने में रहकर जानने वाला हूँ बस। ऐसी लब दृष्टि न हो तब तक तो राग द्वेष उत्पन्न किए बिना रहे नहीं। एक साथ में तो आत्मज्ञान में पूछता नहीं आदमी, तो एक साथ होता है, एक क्षण में एक कर्म को छोड़कर आत्मधर्म एक क्षण में आता है। पुण्य नहीं पाप का भाव है, राग का, उसका रुचि छोड़कर आत्मा आनंद स्वरूप है जिसकी दृष्टि करे एक क्षण में आ जाता है। पानी शीतल है तो उष्ण हो जाता है ना क्षण में, और शीतल उष्ण है एक क्षण में शीतल हो जाता है, स्वभाव उसका है। हम आत्मा राग द्वेष करते हैं तो उष्ण है, दुखी है, उसके छोड़कर मैं तो आत्मा आनंद स्वरूप हूँ ऐसा हो, ये सुखी है। ज्ञाता दृष्टा कर्म का करता होता नहीं। જેની વાત બહુ છે, આ બધાને એ થઈ ગયું ને, હું નામ કરીએ 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 કરીએ, निष्काम दृष्टि है नहीं। निष्काम दृष्टि तो इसके कहे मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं कुछ करता हूँ नहीं, राग का ही करता नहीं, पेड़ को देने लेने की क्रिया का मैं करता नहीं। उसका पिताजी ने सौगंध सुना ना, उसका पुस्तक है धर्म दृष्टि प्रकाश, मिला है तुमको? हिंदी मिला है? सीधिया का ठीक, उसका पिता मैंने बहुत शक्ति थी, आत्मज्ञान हुआ था यहाँ ही आगाम में ही। पहले आई तो बहुत परिचय किया था, साधु बाबा संयोगी स्वाम यम नियम ने आम फला जान दान बता गप्पे गप। फिर आए यहाँ, इतना कहा भैया आप विकल्प उठते हैं ना, राग चाहिए तो दया दान का होता है, ये सब राग से प्रभु भिन्न है अंदर। ऐसा कहा न ध्यान में चली गई। अपने रसोई है ना, रसोई खाना है ना, શું કહેવાય આપણે સમિતિ में है ना, ત્યાં જમ્યા ને કાલ शाम को क्या जम्या है? ठीक, समिति में गई और सांझ से स्वार तक ध्यान में बैठे उसका पिताजी। अंदर में गोलन करते करते राग से भिन्न चैतन्य का अनुभव यहाँ हुआ था इस समिति में। सारी जिंदगी बहुत सारा संस्कार लेकर स्वर्ग में चली गई। हाँ, बहुत शक्ति दृष्टि प्रकार दिया था ना, उसमें बहुत है। तो बहन काम दिया तुमको, वचनामृत दिया ना नहीं? स्वर्ग में जाने का बाद जीव का क्या ये न्याय से निकल कर पैसे बीजा भाव में केवल ज्ञान पाकर मोक्ष हो जाएगा। स्वर्ग जाने का बाद जीव कौन प्रकृति में वहाँ ठहरता है, कौन रूप में ठहरता है? ये ठहरते तो आत्मा ना आत्मा में क्या भी, स्वर्ग में भी, पर राग है थोड़ा तो मनुष्य भाव आकर केवल ज्ञान पाकर राग का नाश होकर मुक्ति होगा। उसमें कुछ रूप है क्या? स्वर्ग है तो रूपी वस्तु है ना, पदार्थ है, चैतन्य आनंद करनी वस्तु है। સ્વર્ગમાં દેવ આવ્યો, જેમાં આત્મા મનુષ્ય હોય દેવ છે, દેવ છે, દેવનો દેહ છે. આ પછી બહુ સુંદર દેહ ને બહુ રૂપાળા ને સા
ये पर है तो थोड़ी बड़ी जैसे है आँख कान रहता है नो सब है देव ने आँख कान है, पांचे कान है पांचे इंद्रिया है स्वर्ग में दिखे बड़ा है पांचे इंद्रिया है बहुत पुण्य है पर ये सब राग का फल था दया दान भक्ति का भाव किया था तो वो पुण्य था तो उसका फल में स्वर्ग आया तो वो भी जानते थे ज्ञानी तो दुख है स्वर्ग में भी दुख है आनंद तो आत्मा अपने में है ऐसा अनुभव में है પુણ્ય કરીને સ્વર્ગમાં જવું એટલે જ મોક્ષ એવી ना ना धूल में मोक्ष नहीं क्या स्वर्ग में ये गति है क्या ऊपर में मुक्त है मोक्ष तो सर्वथा राग से गति से छूट जाए ना मोक्ष है थोड़ा से प्रमोशन है यहाँ पे एक लिंक है पूरा थोड़ा कथा आगे होता है एम नहीं 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 એને થોડો પહેલો सम्यक दर्शन प्रकट करना कि पुण्य ने पाप का विकल्प से मेरी चीज अंदर भिन्न है ऐसा अनुभव हो तो ये प्रथम शुरुआत धर्म की है पीछे राग का भाव है उसको छोड़कर स्वरूप में गिरता के झुम्मट हो जाना आनंद में वो चारित्र है पर वो पहले सम्यक दर्शन हो तो पीछे चारित्र होगा चारित्र कोई क्रियाकांड नहीं अंदर में रमना आनंद में जम जाना अतेंद्रिय आनंद का भोजन करना ये अभी ये चारित्र है ये कहते हैं जब लग ज्ञानो ज्ञान भवती है ना पुद्गल द्रव्य अनुभव नहीं प्रणमता अपने शुद्ध स्वरूप से अनुभव रूप नहीं प्रणमता जब तक इस प्रकार है कि जितने काल तक जी मिथ्या दृष्टि है देखो ये राग मेरा कर्तव्य है तब लग वो मिथ्या दृष्टि मिथ्या नाम झूठी दृष्टि है सच दृष्टि नहीं क्योंकि आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है उसमें राग का कर्म उसका कर्तव्य है ही नहीं दया दान व्रत भाव का भाव भी राग है अनुकंपा का भाव भी राग है ये राग मेरा है ये मिथ्या दृष्टि होकर करते हैं मिथ्या दृष्टि ही उसने काल तक राग विस्वरूप अशुभ परिणाम नहीं मिटता देखो जब लग राग मेरी चीज है और राग से मेरे लाभ होगा और राग कर्म मेरे करना ही पड़ेगा तब लग उसको मिथ्या दृष्टिपना है ये झूठी दृष्टि नहीं छूटेगी है मिथ्या दृष्टि है उतने काल तक राग द्वेष अशुभ परिणाम नहीं मिटता जब लग मैं शरीर को कुछ कर सकता हूँ पर का कर सकता हूँ देश की सेवा कर सकता हूँ पर की सेवा कर सकता हूँ जब लग ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि के है तब लग राग द्वेष उसको नहीं छूटता कम सोई मिथ्या दृष्टि उनके काल तक राग द्वेष अशुभ परिणाम नहीं मिटता तथा बुद्धम बुद्धता में यावत न जाती तथा ज्ञानावरणी कर्म अथवा परिणाम पुण्य पाप का भाव ये ज्ञेय मात्र बुद्धि को नहीं प्राप्त होता है क्या कहते हैं राग आदि है ये ज्ञेय रूप जब लग्न हो आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है ये राग से भिन्न अनुभव न हो तब लग मिथ्या दृष्टि राग द्वेष करता है पर जब राग द्वेष ज्ञेय रूपे रहो और मैं ज्ञान रूपे हूँ ऐसा भान हुआ तब राग द्वेष का स्वामी होता नहीं राग द्वेष होता है पूर्ण वितराग न हो तब लोग पण उसका स्वामी न मेरा कर्तव्य ऐसे नहीं मानते दुनिया थी जीदी जात છે ભૈયા તો અત્યારે તો બધું ઘણું હાલે અનાશક્તિથી કરવું અનાશક્તિ એવું છે
निष्काम वृत्ति करूं બધું ગપે ગપે साधारण संसारी जीव को संसारी सुबह से रात तक क्या करना पड़ेगा? रात छूटना पड़े कल्याण करना क्या होगा। करेगा साधारण जीव? हाँ, ज्ञान करेगा, अंदर में रहेगा, अंदर में ज्ञान में रहेगा। काम काज नहीं करेगा तो? काम कर सकते नहीं जान होता है उसको जानते है, अज्ञानी होता है उसको करता होता है। फिर है ना मोटी बात गांधी जी आया थे व्याख्यान में 95 के साल राजकोट आए थे, मोहनलाल गांधी व्याख्यान में आई थी, वो श्री कस्तूरबा ये 12वां व्याख्यान में आई थी। અને वो જોડે હતો ને કોણ બીજો મહાદેવ દેસાઈ ગાંધીજી પાસે सब आए तो व्याख्यान में आए थे। तो ત્યાં तो ये वक्त कहा था हम तो कि पर की दया पा सकता हूँ, पर को मैं सुखी कर सकता हूँ, यही मानता अज्ञानी मूंढ जीव के है। તમે હતા ત્યારે નહોતા। 95 છું ને, 39 વર્ષ हुआ, 39-40 में एकम सब आए थे व्याख्यान में। गांधी ત્યાં था तो उसकी कमेटी बनने की थे और बेचारे कुछ देश करने का आए थे, तो व्याख्यान में आया था आधा घंटा 35 मिनट आए थे। मारे तो आ है भैया तारा तो भाई देश की सेवा कर सकता हूँ, पर को सुखी कर सकता हूँ, बड़ी भ्रमण अज्ञानी के है। पर को जला सकता हूँ, पर को मार सकता हूँ, पर को अनुकूल सगवड़ता दे सकता हूँ, ये सब मिथ्या दृष्टि भ्रमणा है। हाँ हाँ हाँ, ये जब लग मिथ्या दृष्टि है तब लग राग द्वेष का करता होता है। उपयोग कोई भी तरणकार में થઈ શકતો नहीं। दूसरा को उपयोगी हो सका हूं मैं जन्म में, तो कौन उपयोगी हो सके? फलदेव का उपयोगी क्यों हो सके? पर को निमित्त का अर्थ क्या? क्या तो कार्य होता है उसका, तो त्यारे निमित्त के में आता है, पर निमित्त किया है क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, वकीलात में किया है, मुझे वकीलात नहीं रामजी भाई उपयोगी થઈ પડ્યા છે બીજાને પૈસા પેદા કરવા હતું, ત્યાં બેઠા હતા ત્યાં તો પાપ પાપ डॉक्टर ये पाप है, डॉक्टर हूँ भीड़ में डॉक्टर हूँ। आप तो एकदम मोक्ष का क्लास लेता है। क्लास मोक्ष का क्लास नहीं शुरुआत था, ये मोक्ष का क्लास है। इसका पहले जो नीचे वाला क्लास, नीचे वाला क्लास ये तो संसार में रखने का है क्लास नीचे का। नीचे का 4 गति में रुलने का क्लास है नीचे का। वो पास हो गए तो ना इसके पास होते तो अनंत में किया, उसके पास क्या हुआ? ये कहीं कर सकते नहीं। हाँ हाँ, पर की दया का भाव आना, दया तो पाल सकते नहीं क्योंकि पर वस्तु है, पर भाव आना पर की दया का वो भी राग है, हिंसा है। आवी बात है बापू, बहु आकड़ू बापू काम से राग है हिंसा। भगवान स्वरूप प्रभु आत्मा आनंद कंद है, उसकी हिंसा होती है। हाँ हाँ हाँ, पुरुषा सिद्धिपाई में है, पुरुषा सिद्धिपाई है અમરચંદ્ર એને જીવાડ્યો क्या પોતાને રાગ કર્યો ને मैं जीवाड़ू तो जीवाड़ी सकतो नहीं है, ये तो उसका आयुष से जीवते हैं। जो आयुष दिया उसको इन्हें तो जीवाड़ी दिया, उसका आयुष्य है रहने का, ये कोई टुकड़ा दे दिया उसको, अभिमान किया मैं पर को जला सकता हूँ, मैं पर को रोग मटा सकता हूँ। बूढ़े मटर तो नहीं, एनो पोतानो मटर। एक साथ में तो मोक्ष का आइडिया नहीं मिलता है ना। पहले साथ है हाँ मिलता है। पहले दर्जे राग ना करता मैं नहीं, मैं तो ज्ञाता, ऐसा अनुभव होना ही पहला दर्जे की बात है। दूसरा दर्जा की बात उसमें स्थिर होना, आनंद में लीन होना ही दूसरा दर्जे की बात है। दूसरा दर्जा इतने पहले जीव बुरा काम करते करते सूद काम न, बिल्कुल नहीं, बुरा सूद काम, ये सब अज्ञान है, सब
સદાચરણ શુભ રાગ હે બી અજ્ઞાન ભાવ હે. આટલી વાત નંતર આપે નો દાખલો છે. હે એ આપનો દાખલો નથી, આપે નો દાખલો. દવા તો આ છે. हम लोग जार का डॉक्टर और आप आत्मा का डॉक्टर. વાત है સાહેબ. मगर ना पड़े कोई कौन कौन कर सके कोई का राग ना डॉक्टर. उसकी लायकात है तो पकड़ सके तो उसके कारण से है तो निमित्त है. અહીં બે વાક્યા ભાઈ ચંદુભાઈ. જ્યાં સુધી ज्ञान स्वरूपी भगवान त्यों ज्ञान स्वं राग का करता भी नहीं ऐसा अनुभव न हो तब लोग अज्ञानी राग द्वेष करता है. ये मिथ्या दृष्टि है. शुभ भाव करे, दया का दान का भाव करे, मैं मेरा कर्तव्य है, ये सब मिथ्या दृष्टि, झूठी दृष्टि है. ये नीचे उतरने का रास्ता है 4 गति में. हाँ हाँ एकादो हाथों ना करे हाथों तो हाथों कहे क्या राग करी हाथों क्या ना. सच्चिदानंद प्रभु ज्ञान स्वरूपी प्रभु ये ज्ञान ना कार्य करे जानने का ये सच है. बाकी राग का कार्य करे ये तो असत है, झूठी दृष्टि है. दुनिया की जुदी रात से भाई है तथा ज्ञानावल ज्ञेय मात्र बुद्धि को नहीं प्राप्त होता है. बात अशुद्ध परिणाम जानने के लिए कोई अपने कर्म का उदय कार्य जिस प्रकार करने के लिए समर्थ नहीं. क्या क्या कोई अपने कर्म का उदय कार्य जिस प्रकार करने के लिए समर्थ नहीं. राग का करना आत्मा का ताकत नहीं. अज्ञान से किया है. ये तो कौन करे पर का तो कौन करे पर राग का करता ये भी अपने कार्य का करता मानते हैं. ये मूढ़ है क्या. वो पहली दर्जा की नहीं आखिर दर्जा का पाप है. तो એમ કે પેલા સત્કર્મ કરીએ પછી આગળ વધીને ધર્મ કરીશું થાય. એમ ये सत्कर्म ये मैं किया मारा का यही महापाप है. ये थोड़ा कमती पाप का काम नहीं है. कमती पाप नहीं, मिथ्या का बड़ा पाप है. झूठी दृष्टि का वजह थी. हमारी पास एक बहुत आ गया है. यहाँ तो 45 वर्ष तो यहाँ हुआ. 45 यहाँ फागण होती जाए यहाँ आया 51 तीज हुई ने 1 महीना बाकी है. फागण समझे ने फागण वो तीज को यहाँ आया है. आज मारो तीज है ना, मारो 1 महीना रिया 43 वर्ष यहाँ होगा. 43 4 और 3 हाँ तो जंग सारा था. हाँ तो वस्ती वधी गई પછી करते करते हम तो एक ही लाए थे. हाँ 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 यहाँ तो 43 तो यहाँ हुआ पर हम तो छोटी उम्र में से घर की पिताजी की दुकान थी तो पूर्व का संस्कार था तो हम तो वाँचते थे, शास्त्र वाँचते थे. दुकान का तो न करते थोड़ा बैठते थे, बाकी शास्त्र वाँचते थे. 18-19 वर्ष की उम्र 20 वर्ष के अंदर 18-19 वर्ष की उम्र से है शास्त्र का अभ्यास है. 70 वर्ष से है. ऐसा हुआ ना 70 समझे क्या कहते हैं सीतरा. हाँ 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 तो ऐसा प्रश्न तो बहुत बार आया तो मार गया है भाई. हाँ जब लग उसको राग का करता मानेगा शुभ का भी तब लग मिथ्या झूठी दृष्टि है. तब लग रखना पड़ेगा राग मेरी चीज नहीं, मैं करता ही नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ. ऐसी दृष्टि हो तब उसकी धर्म की पहली सीढ़ी में शुरुआत होती है. पीछे आगे जाकर फिर होता है तो विदेश सीढ़ी होती है. कलश टीका 270 भावार्थ बीच में है. भावार्थ बताओ भाई 270 भावार्थ हिंदी सूक्ष्म है थोड़ा.
अनंत काल से आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप होने पर भी अपनी चीज को जानने का प्रयत्न किया नहीं। ये अंदर में राग ने, द्वेष, पुण्य ने, पाप भाव उत्पन्न होता है, ये खरेखर तो ये परज्ञेय में जाता है। ऐसे न मानकर ये पुण्य ने, पाप का भाव मेरा है और मेरी चीज है, ये भूल आत्मा की दशा में आत्मा करते हैं। दशा में वस्तु तो शुद्ध ध्रुव है, पर पर्याय जो उसके हालत बदलते, विचार बदलते हैं ना, ये बदलती दशा में आत्मा अपना स्वरूप का भान नहीं, वो पुण्य ने, पाप का भाव को अपना मानकर दुख को वेदते हैं। हाँ, समझ में आया? आत्मा में भी विकार आता है। हाँ, पर्याय में विकार आता है। विकार न आवे तो दुख क्या थे? दुख वेदते है ना। दुख वेदते ही वो और सुख वेदते ही वो। सुख है आत्मा की शांति, सूक्ष्म विषय। तो अपने की भूल न हो तो पति आनंद होना चाहिए उसको। उसकी पर्याय में दशा में भूल है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। अपनी चीज आनंद ने ज्ञान स्वरूपी प्रभु, ऐसे आत्मा अपने को ऐसे न जानकर अपनी पर्याय में अवस्था में निज स्वरूप से विरुद्ध ऐसा पुण्य पाप का भाव उत्पन्न होता है। ये मेरा है, ऐसी आत्मा ही भूल करता है। भूल करे जड़ અને वेदन में पड़े आत्मा को ऐसा कैसे? भूल आत्मा करते हैं, त्रिकाल में नहीं, वर्तमान में। चिदानंद शुद्ध चैतन्य घन आनंद ध्रुव, वो तो ध्रुव है ही, पर वर्तमान पर्याय है, अवस्था है, हालत दशा है, ये भी उसकी है। ये हालत दशा में विकार अपने से करता है और अपने से मानते हैं कि मेरा है। ये मिथ्या श्रद्धा, भ्रांति, अज्ञान है। हाँ, समझ में आया? तो ये कहते हैं, देखो बाबा, इस प्रकार के ज्ञानावरण आदि कर्म सम्यक दृष्टि जीव को जानने के लिए है। हाँ, क्या कहते हैं? जरी सूक्ष्म बात है। या तो बात तो जुदी है। अभ्यास न મળે जगत को। धर्म ने नामे पण बाहर ની ક્રિયા કાંડ માં રોક્યા संसार परिभ्रमण में। यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव, सत्य दृष्टि जीव, अर्थात जिसका आत्मा आनंद ने ज्ञायक मूर्ति प्रभु है, ऐसा स्वसन्मुख होकर दृष्टि हुई है और राग ने पुण्य पाप का भाव से अपना भाव को भिन्न किया है। अनादि से विकार भाव को अपना मानकर दुखी इन भ्रांति में पड़ा है। ये आत्मा ही भ्रांति करते हैं। ये सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक नाम सत्य दृष्टि जीव। सत्य दृष्टि जीव का अर्थ मैं पुण्य पाप का भाव वर्तमान विकृत है ही मैं नहीं। तो शरीर वरी तो क्रम पर रह गया तो दूर बार। मैं तो शुद्ध चैतन्य अनाकुल आनंद का रस से भरा पड़ा प्रभु, और अतीन्द्रिय ज्ञान की मैं तो मूर्ति हूँ। ऐसा सत्य दृष्टि अंतर में हो, उसको यहाँ सम्यक दृष्टि, धर्मनी पहली सीढ़ी, धर्मनी पहली शुरुआत, उसको कहते हैं। शब्दों नहीं, शर्तों बहुत है। सुबह नहीं।
समझ में आया? બસો 17માં ક્લાસનો ઘણો વિસ્તાર છે. પૂજ્ય ગુરુદેવે એનો ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે. એનો જે શેષ ભાગ છે તે આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં રહીશું. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.